ہمارا ٹاپک ہے کہ خداون یسوع جو ہے وہ بہترین استاد ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس دنیا کے اندر وہ اپنے کام کے حساب سے استاد ہیں۔ کوئی اگر موٹر سائیکل مکینک ہے تو بھائی وہ اس حساب سے استاد ہے۔ اگر کوئی مستری ہے تو مستریوں کے حساب سے وہ استاد ہے۔ ہر بندہ اپنے پروفیشن میں جو ہے استاد ہے۔ تو کئی گیڑے دین چے بڑے استاد نے ہیں، وہ بھی استاد ہیں اپنے حساب میں نے دیکھا ہے کہ ایسی کمپنیاں ہیں کہ وہ لوگوں کو اسی طرح موٹیویٹ کرتی ہیں۔ ایک بندہ مجھے ملا، انہوں نے کہا پاس صاحب کنی تنخواہ دیڑی؟ میں کہا یار میری 16,000۔ کہندا 16,000 تو میری گڈی تیل کھا جاندی ہے۔ ایسا اس نے خواب دکھانے شروع کر دیا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر کوئی بندہ اپنے کام چے، لیکن سنیں جس استاد کی بابت آج آپ سنیں گے وہ کہتا ہے میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا، تو وہ استاد دے کر دکھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی بابت ہم نے آج سیکھنا ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بہترین استاد ہے۔ خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ آئیے پہلا ریفرنس دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں۔ یسوع مسیح جب بھی تعلیم دیتے اپنے شاگردوں کو تو انہیں بتاتے کہ یہاں بڑے سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ربی کہلاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا کہلاتے ہیں، لیکن سنیے یسوع مسیح آج آپ کو ایک بہترین استاد کا نمونہ دینے والا ہے۔ کلام میں لکھا ہے متی 23 باب 8 آیت مقدسہ میں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور وہ جی بشپ صاحب اور تم سب بھائی ہو، اور تم سب بھائی ہو۔ ہاللیلویا۔ ایویں نہیں ہے بھائیاں نے مشہور کیتا، کیوں بھائی اقبال ایک ایدے پیچھے کوئی نہ کوئی گل سی۔ پریز دا لارڈ۔ یسوع مسیح کہتے ہیں، سنیں بڑے غور سے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، تمہارا استاد ایک ہی ہے اور وہ اوپر بیٹھا جس کا نام یسوع ہے۔ آمین۔ تم آپس میں کیا ہو؟ بھائی ہو۔ اب سنیں یہ باتیں ایسے ہی نہیں ہو رہی، تعلیم پر تعلیم دیے جا رہا ہے میرا یسوع، بتائی جا رہا ہے۔ یہاں بات ختم ہوئی ہے، پھر جمع کر لیا شاگردوں کو، پھر تعلیم دینا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ سکھانے کا عمل شروع کرنا چاہ رہا ہے، شاگردوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں استاد ہوں۔ یوحنا 13 اور 13 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، 13 باب کی 13 آیت مقدسہ میں، کہ یسوع نے بار بار سمجھانا شروع کیا۔ وہاں لوگ جمع کیے، اب یہاں دیکھیں کتنے سارے لوگ جمع کر کے یسوع جو ہے سکھانا چاہ رہا ہے کہ میں استاد ہوں، میں بیسٹ استاد ہوں دنیا کا۔ اب سنیں اسی استاد کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور بھائی خوب کہتے ہو۔ اگر آپ استاد یسوع مسیح کو کہتے ہو تو خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ خوب کہتے ہو، یہ بہت اچھا کرتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ وہ کہتا کیونکہ میں استاد ہوں۔ آگے بھی پڑھ دیجئے گا۔ جب مجھے خداوند استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو یہ بات سنیے گا، جب تمہارے خداوند نے اور تمہارے استاد نے تمہارے کیا دھوئے جی؟ پاؤں دھوئے۔ یہ استاد کا میں ایک پہلو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور بھائی خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ آگے فروغ صاحب یہ لائن دوبارہ پڑھ دیں ان کی رہنمائی کے لیے۔ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے، تمہارے پاؤں دھو دیے، تو تم پر بھی فرض ہے، اور تم پر بھی اب فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ آمین۔ کو لبنا ادھا دا استاد دسو، دنیا جہان دا مالک، ایسے بولے تو فرشتے لینا چ لگ جان۔ کائنات کا ذرا ذرا ایسے منٹوں میں ایک سمت میں سما جائے۔ اس نے کہا روشنی ہو، جرت نہیں پڑی کہ روشنی کے نہیں میں صبح ہوں گی، اسی ٹائم روشنی ہو گئی۔ اس نے کہا پانی خشکی لیدہ، 1 منٹ میں سارا کچھ لیدہ لیدہ ہو گیا۔ اب سنیں وہ کہتا ہے میں خداوند استاد ہو کر
तुम्हारे पाँव धोता हूं ताकि तुम भी एक दूसरे के क्या करो। ये नहीं कि हुण पैर ही फड़ी जाने सारिਆਂ ਦੇ। ये बात सुने, अब मेरा एक दोस्त ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐ ਲਾਈਨ ਚ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, मैं जी पाँव धोने बस ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पाँव ਧੋ ਕੇ बाहर। ये काम नहीं है। सुने इस बात को कि खादमां ने बुलाया पैर धो ले तो पैर, अच्छा जी खुदा हाफिज है, मैं मसरूफ जा रहा। नो, ये बात नहीं है इसके पीछे। पढ़िएगा इससे अगली जरा आयत मुकस्सा को पढ़ दीजिएगा। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना, और भाई मैंने तुमको एक क्या दिया है, नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। तुम भी किया करो। अब नमूना क्या है कि दुनिया जहान का मालिक है, अर्श फर्श उसके कंट्रोल में है, कायनात का जरा जरा उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसका नमूना देखें कि उसने आकर शिगिर्दों के पैर जो है वो पकड़ लिए। अब यहाँ ले आए किसी जो पार्लियामेंट के वर्कर को, किसी को ले आए। मैं कहता हूँ कोई भी बंदा जो MPA MNA वुज़रा लेवल का हो, भाई कहे हैं इधर कोई बंदा रेड़ी ते जा रहा तो उन्होंने जफ्फी पा के मिल ले, हाँ शायद इलैक्शनां दे दौर च मिल ले जो वोट चाहिए। क्यों? सुने इस बात को। लेकिन इसके बाद देखें, जब ये टनोर गुजर जाएगा, इसके बाद देखें उसका एटीट्यूड कैसे बदलता है, उसका रवैया कैसे बदलता है। उन्हें कहना नहीं नहीं मैं तो हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। लेकिन इस उस्ताद पर गौर करें और इस उस्ताद की कदर करें कि ये तो कहता है लाजर कब्र से बाहर आ, तो 4 दिन का लाजर जिंदगी को लिए हुए कब्र से बाहर आ जाता है। और ये उस्ताद कदमों को पकड़कर आपको और मुझे नमूना देता है कि भाई हमने अपने आप को छोटा करना है। तो आज मैं पादरी वेखियो अपना बैग भी नहीं चुकना पसंद कर दे। तो सुने इस उस्ताद की बाबत, उसने कहा मैंने तुमको क्या दे दिया है। सो हमारा टॉपिक है कि यीशु मसीह जो है बेहतरीन क्या है जी, उस्ताद है। उसने नमूना दिया। अब सुने आगे भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज ये लूका ने तस्दीक के साथ ये बात लिख दी। और आज ये बात लिख लीजिएगा कि इमाल की किताब और लूका ने लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, ये 2 किताबों का मुसन्नफ है। 2 किताबें इसने लिखी हुई हैं। अब खुदा का कलाम इमाल और उसका पहला बाब और 1-2 यतम कसा में लिखा है, ए स्टीफनस मैंने पहला रसाला इन सब बातों के बयान में तौसीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। भाई करता भी रहा ते सिखाना भी रहा। आमीन। हुक्म ही नहीं चलाता रहा कि भाई इदां कर लो उदां कर लो। कलाम सिखाता है कि यीशु करता भी रहा और सिखाता भी रहा। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब उसने खिदमत शुरू की, शिगिर्दों का चुनाव किया, तब से जब वह आसमान पर उठा लिया गया तब तक 3.5 साल। अगर उन्हें क्या ना कि भाई यहाँ से पत्थर ज़्यादा कैसे गुजरेंगे, तो मैं देखता हूँ कि उसने पहला पत्थर खुद उठाकर इधर साइड पर रखा, भाई ऐसे गुजरेंगे पत्थर साइड पर कर दिए जाएं। हुक्म नहीं चलाया। लूका बड़े वजाहत के साथ लिख रहा है, कहता यीशु करता भी रहा और सिखाता भी रहा। और आज हम उस बेहतरीन उस्ताद की बाबत जो है सीख रहे हैं। आइए मत्ती की इंजील 11 बाब 28 और 30 यतम कस्सा को देखते हैं। अब उसने शिगिर्दों को भी सिखाया, अब वो पब्लिक के अंदर आ गया है, अब वो जो है लोगों के अंदर आ गया और उन्हें सिखाना चाह रहा है कि भाई किस तरह लोग सीखें। शिगिर्दों को तो उन्हें सिखा कर सेफ कर लिया है, अब लोगों को सेफ करना चाह रहा है। कलाम के अंदर लिखा है अब लोग बड़ी मेहनत करते हैं। यीशु इस बात को जानते हैं। उसने कहा ऐ मेहनत उठाने वालों, और यीशु जानते हैं कि लोगों के ऊपर बोझ हैं, कर्जों के बोझ हैं, किश्तों के बोझ हैं, बिल अदा करने के बोझ हैं। यीशु सारी कंडीशन को जानते हैं और कहते हैं ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और भाई सब कहता यीशु कहता मेरे पास आ जाओ,
तुमको आराम दूंगा। मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। आई विल गिव यू अ रेस्ट, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब सुने आगे क्या कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये जुआ अपने ऊपर क्या कर लो, उठा लो। और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि वो उस्ताद है, क्योंकि मैं हलीम हूँ क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम और तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। सुने इस बात को, आज हम आराम ढूंढने के लिए, मैं अब्दुल्लापुर ਦਾ ਪੁਲ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਸੀ? ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰਸ ਸੀ। ਸੁਨੇ ਇਸ ਬਾਤ को, ਤੇ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਟਰस। मैं कहा सुन मेरी बात, लोगों को नींद नहीं आती रात को, लोग सुकून ढूंढते हैं, लोग जो हैं वो ढूंढते हैं कि हमें किस तरह आराम की नींद आए। और कहता है कि शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि सारा दिन काम से थक जाता है गरीब, सारा दिन काम से थक जाता है गरीब, पत्थर को सराहना बनाता है गरीब, क्योंकि उसने कभी नींद की गोली नहीं खाई। आमीन। क्योंकि गरीब नूं तो पता है कि मैं यस्सु नूं याद करना है। अब सुने इस बात को, उसने कहा ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, भाई यस्सु के पास आ जाओ। तो जो बोझ हुंदा, टेंशनां सानूं यस्सु दे कोल ही नहीं आन देंदियां। ये बहुत वीकनेस हमारे अंदर, ये हमेशा याद रखें। खुशहाली में भी हम अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, वीकनेस में भी हम कह रहे हैं लो जी यस्सु तेनों असी लब्बे सी। लेकिन यस्सु अब लोगों को तलीम दे रहा है, शागिर्दों को हटकर अब वो पब्लिक के अंदर आ गया। उसने कहा मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास मैं तुमको परफेक्ट आराम दूंगा। और मैं ये ऑथेंटिक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं गेड़ा नहीं दूंगा। अब सुने, मेरा जुआ अपने ऊपर ढा लो और मुझसे सीखो। और जो सीख लेंगे पब्लिक में लोग, अब ये पब्लिक के अंदर कलाम हो रहा है, शागिर्दों के साथ नहीं हो रहा। सुने, शागिर्दों को भी यीशु सिखाएगा, फिर शागिर्द भी नहीं से समझ रहे। तो सुने, मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, आप आराम पाएंगे। अब सुने, वही जो मैंने पिछले हफ्ते भी ये बात की, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि यीशु मसीह जो है कश्ती में बैठ गया है और शागिर्दों को सिखाना चाह रहा है, शागिर्दों को सिखाना चाह रहा है, शागिर्दों को सिखाना चाह रहा है। ये गलील की झील का मंजर है, मैंने इसको देखा है नेट से, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये गलील की जो झील है, जिस पर यीशु चला भी और जिस पर यीशु ने बड़ा कलाम सुनाया, ये उसका नक्शा है। और इसकी लंबाई जो है वो 21 किलोमीटर है। यानी कि इत्थों अगर असी शुरू होइए तो मे भी असी झाल तो भी परां चल जाइए, एडी दूर दूर जी है ना इसकी लंबाई है। 21 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है इसकी 12 किलोमीटर है। और पुराने अहदनामा में भी इस करनत की झील जो है वो कहा जा रहा है। अब सुने, ये तो इसकी डेफिनेशन है झील की, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि आपके नॉलेज भी होना चाहिए। अब सुने, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये झील का अंदरूनी मंजर मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूं। अंदरूनी मंजर, अक्सर इस झील को 3 नामों से जो है वो याद किया जाता है। 3 नाम है इस झील के। जब भी आप बाइबल पढ़ें आज के बाद आप सोच लें कि ये गलील की झील की बात हो रही है। पहला जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, अक्सर लोग जो है वो गलील की झील भी इसे कहते हैं। सर लफ्ज जो है ये 3 इस्तेमाल होते हैं झील पर। अब वही सवाल वहीं जब यीशु शागिर्दों को सिखाता है, झील के किनारे आता है। फरूक साहब कटिए जरा लूका 5 बाब पहली तो 11 आयत मुकस्सा। अब सुने, शागिर्दों को सिखाना शुरू कर रहा है यीशु, क्योंकि यीशु जो है वो बेहतरीन उस्ताद है। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती, अब भीड़ गिरी पड़ रही है, पब्लिक से वो बाहर निकल रहा है। अब सुने, ये इसी की बाबत बात हो रही है। देखे, तो ऐसा हुआ कि गरनासरत की झील, उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। अब ये उतर कर जाल दौड़ रहे हैं क्योंकि सारी रात जाल फड़ते रहे ते फड़िया इन्होंने बूझे जी फड़ ले। सुने, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा। अब सुने, किनारे से उन्हें क्या जरा हटा ते जरा गहरे दे विच ले जा। ए किनारे तो हटा के गहरे, ये इन्होंने सुना हुआ है। सुने, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको जरा।
अब उसने इसको हटाया और गहरे पर ले गए। तो सवाल फिर वही कर रहा है कि यसू सारी रात कुछ भी नहीं हाथ आया, यहीं फिरते रहे, जहाँ तू ले आया यहीं तो हम थे। तो यसू कहता नहीं, अब तू जाल फेंक दे। तो मैंने उस दिन भी सुनाया कि यसू ने वहाँ कलाम किया कि जो कोई यसू ते ईमान लेगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा दी। तो मछलियां ने भी कलाम किए जी, सुन लिया सी थले, तो वो भी सारियां जाल च वड़ आईयां। तो उन्होंने कहा है आओ यसू नूं वेखिए, जाके आओ देखिए किहड़े किहड़े शागिर्दां नूं। तो जब वो सारे जाल भर गए, फटने लगे, उन्होंने शरीकों को बुलाया कि आओ जी साड़ी मदद करो, साड़ी तो कश्ती भी डूब चली है। तो जिस कश्ती दे विच यसू होवे कश्ती डूब सकती है? वो कश्ती नहीं डूब सकती। सुने, अब उन्होंने ऐसे ही जाल फाड़ दिए, वापस मछलियां छोड़ देता। यसू ने कहा तो तू मछलियां नहीं पड़ेगा बल्कि आदमियों का शिकार करेगा। हालेलुया। अब सुने इस बात को, ये यसू सिखा रहा है, ये शागिर्दों को सिखा रहा है कि भाई सीख जाओ, यहीं तुम सारी रात फिरते रहे हो लेकिन तुम कल्ले ही फिरते रहे हो। हम अकेले कामकाज बहुत करते हैं, 3-3 नौकरियां, 4-4 नौकरियां, 5-5 नौकरियां सीख ले। उस्ताद क्या आपको सिखाना चाह रहा है? काम वो भी कम नहीं कर रहे, काम वो भी ज्यादा ही कर रहे हैं, सारी रात जागते रहे हैं। उन्हें कहा यार कुछ नहीं उधर चले, कुछ नहीं उधर चले, उधर काम हम भी बहुत करते हैं, सुबह को उठते हैं, रात कर काम किए जा रहे हैं, लेकिन सारा काम यीशु के बगैर ही होता रहता है। ये भी सारा काम यीशु के बगैर ही कर रहे थे। और देखें जब यीशु साथ हुआ तो उथों ही चश्मे जारी हो गए। हालेलुया। ये बात सीखें आज यीशु जो सिखाना चाह रहा है। बहुत लोग हैं, बड़ा मान है उन्हें कैसे काम करते हैं बड़ा, लेकिन सुने जब में यीशु नहीं होता तो वो काम का कोई मजा नहीं होता। सुने मैं आपको, अब यीशु शागिर्दों के साथ जा रहा है। फरूक साहब रेफरेंस आगे मैं आपको बता रहा हूं। यीशु ने अंजीर के दरख्त से कुछ कहा है और सिखाया शागिर्दों को है। कहा अंजीर के दरख्त को है और सिखाया शागिर्दों को है। सुने मरकस 11 बाब और उसकी 12 आयत कसा, ये अंजीर का दरख्त है। और यहाँ एक बात है, देखिए ये शागिर्द है, ये 12 शागिर्द हमने बनाए हैं ताकि आप जाने। अब यीशु क्या दरख्त नूं रहा है ते सिखा शागिर्दां नूं रहा, क्या सिखा रहा है? अब सुनिएगा जरा मरकस की अंजील। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले, यस बैतनिय्याह से निकले हैं जी, और उसे भूख लगी, और यीशु को भूख लगी है। अब सुने यीशु को भूख लगी है, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त अब यीशु ने दूर से एक अंजीर के दरख्त को देखा है जिसमें पत्तियां थीं, जिसमें पत्ते ही पत्ते लगे हुए सी। हाँ जी, देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। अब यीशु देख रहा है कि शायद उसमें कुछ पाए, लेकिन मैं यहां देखता हूं कि यीशु को पता है कि वहां पत्तों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वो यीशु है, उसे पता है, उसने ही तो अंजीर का दरख्त वहां लगवाया है, उसने ही तो उसे फैलाया है, उसने ही तो सारा कुछ किया है। लेकिन आज जो बात है वो सिखाना चाह रहा है, ये जो 12 फिर रहे हैं ना, इनको सिखाना चाह रहा है। सुने आगे क्या लिखा हुआ है। मगर जब उसने उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। अब यीशु ने उसको देख लिया है और उसके अंदर पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। अब ये जो है मौसम भी अंजीर का नहीं था। और बड़े सारे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अंजीर ਦਾ मौसम है कि नहीं है। बड़े सारे सवाल करते हैं इसको लेकर, बड़े सवाल मुझसे बहुत दफ़ा हुए। उन्होंने कहा ये लो यीशु को तो पता ही नहीं है कि अंजीर का मौसम भी चल रहा कि नहीं चल रहा। और मैंने कहा सुनो भाई, इसके पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि यीशु कह तो अंजीर से रहा है, लेकिन सिखा किनको रहा है जी? शागिर्दों को रहा है। अब नहीं मिला फल, यहाँ यीशु सिखा रहा है, फल नहीं मिला। आगे पढ़ दीजिएगा जरा जल्दी 14 आयत कसा को। उसने उससे कहा कि आइंदा को कोई तुझसे कभी फल ना खाए। कोई फल के ना तेरे को खाए ही ना। और उसके शागिर्दों ने सुना, और शागिर्दां ने सुन लिया। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ? शागिर्दां ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਯਿਸੂ, शायद ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, लेकिन वो सिखाना किनको चाह रहा है? शागिर्दों को। अंजीर को कहा, मैं यहाँ देखता हूँ कि उसने बुलंद आवाज से कहा होगा, तो जे लभना होंदा तो कोल आन के चुप करके भी बंदा लभ ही लैंदा। जिवें असीं सारे माल्टिਆਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਲਟੇ ਲਾਣੇ, ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ,
सुने इस बात को। अब सुना किनको रहा है यीशु? शिगिर्दों का रहा, कहा कि आइंदा तेरे ते कोई फल ही ना लगे। अब सुने, ये देखें, ये सूख गया। अब ये वही तब नहीं सूखा, इन्नी को गल कह के यीशु अगे दी लंघ गया, शिगिर्द पीछे आ गए। चलो जी आगे आगे। अब इस आयत को जब हम देखेंगे ना, 20 को पढ़िएगा, देखिएगा जरा। ये तभी नहीं सूखा, हिसाब लगाएं कब सूखा ये जी। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे, अब सुबह को ये वापस गुजर रहे हैं, तब ये जा रहे थे, अब वापस गुजर रहे हैं। तो उस अंजीर के दरख्त को जो जड़ तक सूखा हुआ, अब ये जड़ तक सूख गया है। ते पतरस जेड़ा उन्होंने हमेशा गल्लां याद रहंदियां सी। ये एक मंजर है जब वो ढूंढ रहे थे, और एक मंजर है जब वो सूख गया। लेकिन सिखाया किन्ना नु आ? गल दरख्त ना हुई, लेकिन मैं अब दिखाना चाह रहा हूं कि क्या किस तरह सिखाया गया जी। बिशप साहब जरा पढ़िएगा। पतरस सवाल कर रहा है, क्योंकि पतरस जो है अक्सर सवाल किया करता है। पतरस को वो बात याद आई, पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ऐ रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो। हालेलुया। सुने, अब सिखाना क्या चाह रहा है? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, और भाई जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ कर जा और समुद्र में जा पड़, और जा पड़ समुद्र में, और अपने दिल में शक मत और करे। अपने दिल में शक, ए चीज सिखाना चाह रहा शागिर्दां नूं। अंजीर दे दरख्त दी गल नहीं, वो सिखाना चाह रहा है। अब सुने आगे क्या लिखा हुआ है। बल्कि यकीन करके जो कहता है वो हो जाएगा। आप यकीन करें, कहता हो जाएगा। अगली भी पढ़ दीजिएगा जरा, बड़ी अच्छी आयत मुकस्सा है जरा। उसके लिए वही होगा जी जी। ये मैं तुमसे कहता हूँ। अब सुने यीशु क्या कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो। हालेलुया। सीखे क्या सिखाना चाह रहा है? अंजीर दे दरख्त की गल नहीं हो रही। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुमको मिल गया। और भाई मिल गया। हालेलुया। और मैं खादम की किताब में पढ़ रहा सी, उन्हें क्या, मैं ना खुदा को ना एक कार मंगी। सुने इस बात को मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। कहता मैंने जब वो कार की एक दफा आकर दुआ की, ते दूसरे दिन आके मैं दुआ दे अल्फाज बदल दिते। पहले दिन मैं क्या, खुदा मैनू कार चाहिए। दूसरे दिन मैं आके उन्होंने क्या, खुदावन तेरा शुक्र है तू मैनू कार दे दी। हालेलुया। हालां कार को नहीं से कहना बाहर खड़ी, तो जेड़े सुनन दे शायद हसन लग पे। उन्हें क्या, खुदावन तेरा शुक्र है तू मैनू कार दे। कहता मैंने इस बात को अपने दिल में बिठाया, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन से मांगो, और यकीन कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। अभी हमने पढ़ा, यीशु वहां भी शागिर्दों को यही सिखा रहा था। अंजीर के दरख्त की बात नहीं थी, ये सिखाना चाह रहा था। अब सुने इस बात को। वो बंदा कहता मैंने दूसरे दिन कहा, खुदावन तेरा शुक्र है तू मैनू कार दे दी। तो कहता मैंने हफ्ते बाद देखा कि एक बंदा है, उन्हें कहा जी पास साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कार रखी सी, तो मैं किन्ने दिनों का सोच रहा, चक्कर नहीं लग रहा। हालेलुया। सो यकीन करें, बातों का जब हम यकीन करेंगे तो हमें मिल जाएगी। अब यीशु फिर शागिर्दों को लेकर खेत के अंदर गया है, और ऐसे ही मैं बोलूँगा ताकि टाइम को कम लगे कि अभी हमने शायर बानी को भी लेना है। अब यीशु जो है शागिर्दों को लेकर गंदम के खेत में से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है जी? और शागिर्दां नूं भुख लगी, तो मैं समझदा कि अज यीशु जो है फकीयां ते फरीसियां नूं सिखाना चाह रहा। क्यों सिखाना चाह रहा है? कि यीशु को पता है कि वो मुझसे सवाल करेंगे। जल्दी जल्दी शागिर्द उठे, उन्होंने कहा चलो चलो नाश्ता नहीं करना, निकलिए हैं। अब शागिर्दों को यहाँ आकर भूख लग गई है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि आज यीशु जो है वो शरा के आलमों को, फकीयों फरीसियों को सिखाना चाह रहा है, क्योंकि वो अच्छा उस्ताद है। अब वो यहाँ आया है, शागिर्दां नूं भूख लगी है, गंदम का खेत है, और सुने वो उससे कहने लगे यार आज तो सब्बत है, यीशु तेरे शागिर्द क्या कर रहे हैं? तो यीशु ने कहा कि कोई बात नहीं है। उस वक्त यीशु सब्बत के जी
दिन खेतों में होकर गया जी। उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बारियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे। जी, जी। फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्त के दिन करना रवा नहीं है। उसने उनसे कहा कि क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया। आइए देखो, कहता उन्होंने नजर दियां रोटियां खा लियां जिन्हां नूं खाना भी नहीं सी चाहिदा। अब सुने ते कहंदा मैं उन्हां नूं कुछ नहीं कह रहा तो तुहानूं की मसला। ओ भाई मैं नहीं कुछ कह रहा, तुम्हें क्या मसला है। अब सुने, आगे भी सुन ले, बिशप साहब ने पढ़ दिया है। क्योंकि वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई। हाँ जी, क्यों? खाना रवा ही नहीं था। उसको रवा ना था जी बिल्कुल, साथियों को मगर सिर्फ कहनों को। हाँ जी। या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि कहन सब्त के दिन हैकल में सब्त की बेरुमती करते हैं, हाँ जी, और बेकसूर रहते हैं। बिल्कुल। मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से बड़ा है। हालेलुया। उसने क्या कहा कि जहां जो खड़ा है वो हैकल से भी बड़ा है। हालेलुया। कि एवं ना गला करी जाओ, क्योंकि वो अच्छा उस्ताद है। तो फिर आगे हम जब चलते हैं, लेकिन अगर तुम इसके मायने जानते कि जी मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद हूँ। फिर वो हैकल में गया। सुनिएगा इस बात को, हमारा यस्सु जो है वो अच्छा उस्ताद है और उसने वहाँ एक सूखे हुए हाथ को भी अच्छा कर दिया, क्योंकि वो वहाँ हैकल में भी सिखाना चाह रहा था। आज अब जिस उस्ताद के पास हैं वो सबसे अच्छा उस्ताद है और आप उससे सीखे। पहली बात जो उसने अंजीर के दरख्त से सिखाई कि भाई जो कुछ दुआ च मांगते हो यकीन कर लो कि तुहानू मिल गया। आज ये बात सीख लें, क्योंकि वो आपको सिखाना चाह रहा है। आप शक ना करें। कलाम सिखाता है शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानद है। जो शक करते हैं वो समुंदर की लहरों की मानद है। जब दूर से हम देखते हैं ना समुंदर की लहर को कि वो आ रही है, तो यकीन जाने ऐसे लग रहा है जैसे उसने समुंदर की लहर ने सारा कराची तबाह कर देना। ऐसे लग रहा होता बड़ी, लेकिन आंधे 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 वो पाँव में मिल जाती है। शक करने वाला भी ऐसा ही है। पिछों तो लगता है जिवें पता नहीं कि चर्च च सारी शफा इहदे थ्रू ही आ रही है, लेकिन आंधे 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 बस वो भी बह जाता है। सुने, आज शक ना करें। आज जो कुछ भी आप अभी मांगेंगे यकीन जाने मेरा यस्सु वादों में तखीर नहीं करता। उसके वादे हाँ के अंदर है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे। आमीन।